Good morning everyone present here. So my name is Ujaswi and today I am going to talk about grievance handling. Before coming to the topic, I have a question for you all. Like मैं आप लोगों से एक करके एक क्वेश्चन पूछूंगी. आप लोग किसी भी प्रीवियस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, आप लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, तो आपने कभी ऐसी चीज़ अपनी कोई कंप्लेंट किसी सीनियर को रजिस्टर करी है या किसी को देखा है करते हुए? So I want everyone to give your inputs about that. So I will start with Akil. So like आपने कभी किसी को कंप्लेंट रजिस्टर करते हुए देखा हो या आपने खुद भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी हो कि आपने अपने सीनियर को पूछा हो, तो ऐसा कुछ? I do not remember anything for the complaint. लाइक किसी को भी करते हुए देखा हो, लाइक उसको कोई इशू है तो आपने देखा हो कि वो अपना इशू किसी को रजिस्टर कर रहा है, कोई भी रैंडम सिनेरियो अगर आपने देखा हो तो. But any complaint होता है अगर if any complaint in hotel उसमें ग्रेविनेंस डिपार्टमेंट होता है रजिस्टर करने के लिए बताने के लिए कि क्या कंप्लेंट हुआ है. ओके श्रेया, योर एक्सपीरियंस. मेरे केस में when I was in training, so I did place a complaint about a chef who was basically kind of harassing me. So I had complained my sous chef first, and then he asked me to talk about it to the executive chef, and later on that problem was solved, which I was facing. Savri. So in my college, there was a girl who was being not being harassed, but she complained about harassment about a boy that was was next to him. So it wasn't done basically, but it wasn't proved that he has done. But yeah, the case was made that he has done. Manav? Yeah, sorry, I haven't worked yet anywhere, so can't say anything related to this. Okay, no issue. Devanshu? Not a such situation. Chaitanya? Okay. Aryan? I didn't face any तो मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला कि सब दिक्कत लड़कियों को ही होती हैं या लड़कियां याद रखती हैं. लड़कियां ऐसी होती हैं. सर मैं आंसर नहीं देना चाह रहा, बस लड़कियां यही नहीं पॉइंट face है. करती हैं, इसी वजह से होता हाँ. है। ओके ओके ऐसा ना हो ये लड़के इसका करते इसीलिए होता आज का है। टॉपिक चेंज ना हो जाए कहीं. टीवी का मामला उठाए में हो जाएगा. हाँ पता लगा कोई और की बॉटल दिख रही है तो बस चालू हो जाए. ओके So आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ग्रीवियंस हैंडलिंग. सो जो भी आपने अपना सिचुएशन बताया उसको कैसे डील करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, तो हम इसी के बारे में आज कंटिन्यू करेंगे. सो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन इज today we are going to talk about what is grievance handling is, what is employee grievance handling, what is its nature, what are the causes and how do we handle it. So आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, फिर किसी को इसका मतलब पता है what is grievance handling is? It's a process of listening or addressing the Complaint. A formal complaint that has been done by employers to the high people or the HRs for their any sort of complaint it could be. Yes, rightly said by all three of you. So आपको ये वर्ड दिख रहा है ग्रीवियंस, पर्टिकुलरली इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या किसी को पता है? लाइक व्हाट इज ग्रीवियंस इज? Complaint problem. Issues. यस. सो बेसिकली ग्रीवियंस जो है, सो बेसिकली ग्रीवियंस एक तरीके की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और कंप्लेंट और इनजस्टिस जो कोई भी एम्प्लॉय फील करता है अपने अंदर. सो आपको पता है कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? डज एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट इट? Greek word होगा. नहीं पता चल. So basically the word grievance, it basically comes from old French word that is griever. So griever का मतलब होता है to burden somebody or to cause hardship to somebody. इसका मतलब ये होता है. So the meaning of grievance handling is basically is that it is a systematic process in which somebody listens to someone's complaint about any kind of
dissatisfaction he had any issue in anything related to that. So grievance handling एक ऐसा process है जिसके अंदर हमारे एक senior हमारी complaint को सुनता है, फिर उसको अच्छे से handle करता है और वो उसको solve करने के various possible outcomes ढूंढता है. कोई भी सीनियर हो सकता है? नहीं सर, इसके आगे मैं बता रही हूँ, अभी बताऊंगी इसके बारे में भी है सर. So now I want anybody to read this definition for me. Employee grievance handling is the systematic process of receiving, examining, and resolving employee complaints in a fair and timely manner. And I want somebody to explain it for me, like कोई भी. So grievance handling जो होता है वो एक systematic process होता है जिसमें पहले प्रॉब्लम को सुनी जाती है, फिर उसके बेसिस पे एग्जामिन किया जाता है, बेसिकली क्रॉस चेक किया जाता है, एंड फाइनल सोल्यूशन जो है एम्प्लॉय की कंप्लेंट्स को दिया जाता है जो कि फेयर होना चाहिए, किसी भी तरह से बायस नहीं होना चाहिए, एंड वो एकदम टाइम पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी हो. So श्रेया ने बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया है इसको, उसने बहुत अच्छे से समराइज किया है. तो ग्रीवेंस हैंडलिंग जो होता है वो एक फॉर्मल या तो एक इनफॉर्मल कंप्लेंट होती है जो भी एक एम्प्लॉय रेस करता है रिगार्डिंग किसी भी तरीके का उसकी तरफ अनफेयर ट्रीटमेंट हो, या तो वर्क प्लेस कंडीशन उसको अच्छी नहीं लग रही हो, या तो कुछ भी उसको पॉलिसी रिलेटेड इशू होगा, तब एम्प्लॉय ग्रीवेंस हैंडलिंग होता है. ठीक है, तो ग्रीवेंस हैंडलिंग में बेसिकली एक एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम जो है एक अपने सीनियर्स को, टॉप मैनेजमेंट को अपनी कंप्लेंट एड्रेस करता है, जिससे वो क्या कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो इंडिया में जो है एम्प्लॉय ग्रीवेंस हैंडलिंग जो है वो प्राइमरली गवर्न किया जाता है एक एक्ट के. किसी को पता है वो एक्ट क्या है? ओके, सो बेसिकली एक एक्ट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज 1947. तो इस एक्ट में बेसिकली होता क्या है, इस एक्ट में बेसिकली 20 या 20 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक कमेटी फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम GRC. सो डज एनीबडी नो व्हाट इज GRC? GRC क्या होता है? जस्ट एन आइडिया और anybody know about it? So basically GRC जो होता है वो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होती है जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा लोग मिलकर एक कमेटी फॉर्म करते हैं और वो लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को केटर करते हैं और फिर उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन या आउटकम ढूंढते हैं. तो 20 लोग कहाँ के होते हैं? सर कोई भी कमेटी में जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं तो वो एक मतलब अपना एक क्या कहते हैं जैसे यूनियन या एक कमेटी बनाते हैं, तो वो उनकी लाइक जो भी लाइक टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो मिलके एक कमेटी फॉर्म करते हैं. तो फिक्स नंबर रहता है या? सर बोला ना 20 या 20 से ज़्यादा. और अगर उसी में से किसी के खिलाफ है तो? क्या सर, लाइक समझे? सपोज करो हाँ कि GM है, GM इज पार्ट ऑफ द कमिटी, ओके, और जो दिक्कत है वो उसी के खिलाफ है. सर तो उसमें और लोग भी होते हैं ना, तो वो नहीं तो बट ही विल बी सिटिंग इन द कमिटी तो ही कैन इन्फ्लुएंस. सर ही कैन बट क्या कहते हैं, और मतलब डिसीजन जो है वो बेसिकली फैक्ट्स और एविडेंस पे लिया जाता है. ये नहीं होता कि अगर GM बोल रहा है तो वो GM की ही सुनेंगे, ऐसे नहीं है. वो उनकी प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड को चेक करता है फिर वो बताता है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो जज बैठे हुए हैं, देखते ना जजेस भी होते हैं, तो जज अगर 7 जजेस का पैनल है और उसमें से एक जज के ऊपर उसके खिलाफ ही वो मुकदमा है, तो कैन ही बी पार्ट ऑफ इट? in that situation he cannot be part of it because उसके ऊपर ही एलिगेशन हो रहा है, तो वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. और अगर मैनेजमेंट के खिलाफ है तो? पूरा मैनेजमेंट के खिलाफ. वर्किंग आवर्स को लेके? सर वर्किंग आवर्स को लेके होगा तो वो पहले हम चेक करेंगे ना कि वो जो एम्प्लॉय बोल रहा है वो सच है भी कि नहीं. अगर वर्किंग आवर के लिए बोल रहा है कि उसको बोल रहे हैं कि इसको हमने 13 घंटे की शिफ्ट कराई, वो इस चीज़ में कंप्लेंट कर रहा है, तो हम पहले चेक तो करेंगे कि उसने उतना काम किया है भी कि नहीं किया. मतलब फिर वही वाली बात तो वही, जज भी वही है और उसी के खिलाफ है.
सर इसमें क्या होता है कि आगे हम इसके ना कॉजेज भी देखेंगे कि क्या होता है, क्या नेचर है इसका, तो उसमें हम बताएंगे आगे। ठीक सो वैसे ऐसे सिनेरियोज में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं मतलब मीटिंग के लिए। तो वो अलग हो गया फिर। नहीं, अगर जैसे जीएम के केस में लिए ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, या अगर कोई भी मैनेजर सीनियर पोजीशन मैनेजर के लिए तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बैठते हैं डिसीजन के लिए। एंड एनजीओ से भी लोग बुलाते हैं, मतलब एक्सटर्नल लोग भी बुलाते हैं जस्ट फॉर गिविंग द डिसीजन। इससे सवाल पूछो, टांग खींचो। ठीक है सर आज मैं पढ़ के आई हूँ। पढ़ के आए? ओके। सर सो बेसिकली जीआरसी का मेन पर्पस ये होता है कि वो एम्प्लॉय को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिसके अंदर वो अपनी ग्रीवियंस को एड्रेस कर सके। और ये क्या करता है, बेसिकली ये इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और उनको जस्टिस मिले। और इनका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी कंप्लेंट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही सेटल हो जाए, ये नहीं कि वो आगे ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी स्ट्राइक्स में क्रिएट हो जाए। उनका ये पर्पस होता है कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दे। सो आई विल बी चूजिंग 3 person and they will answer one question each, which I will ask. So I want Yogita, Akib and Chaitanya. तो फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू चैतन्य। सो चैतन्य, मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाट डज जीआरसी स्टैंड्स फॉर? Grievance committee. Risk complaints. Yes. Can I answer? Yeah, Grievance Redressal Committee. okay. Right answer, sorry. And now my question is for Yogita. So how many people do we need to form a GRC? योगिता का दिमाग कहीं और लग रहा है। Okay, anybody else? Devanshu, you can answer. 20 or more than 20 people. Yes, rightly said. Now next question is for Akib. So योगिता अपने प्लान के बारे में सोच रही है। Akib, my question for you is that कौन सा एक्ट है जिसमें हम एम्प्लॉय ग्रेवियंस हैंडलिंग को उसमें रजिस्टर करते हैं? कौन सा एक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया? बताया था, तो लिखी है क्या? Employee disruption. नहीं डिसरप्शन। सर मेरे को लगता है एक ही बार ध्यान देते हो अपनी पीपीटी में। इसने सही लोगों को पकड़ा, तीनों को। जो भी 1947 में था। Anybody has the right answer for this? Industrial Disputes Act 1947. Yes. Other So please listen carefully. I can answer and I can ask question to अब anyone. लिखूंगा। So now coming to the nature of employee grievance. So पहला है systematic and formal. So systematic and formal basically ये ensure करता है कि ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम है वो क्या कहते हैं, एक फिक्स्ड रूल्स में और क्लियर स्टेप में फॉलो हो। मतलब किसी की कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है तो हम रैंडमली किसी को ऐसे सॉल्व नहीं करने लगते। इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम उसको हैंडल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मैं बाद की स्लाइड में बताऊंगी आपको अभी। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी कंप्लेंट को रेज करता है सीनियर को, जीआरसी या सीनियर्स को, या वो एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट को रेज करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी कंप्लेंट को हम अच्छे से सुनते हैं, फिर उसकी कंप्लेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम प्रीवियस फैक्ट्स या एविडेंस पे उसको देखते हैं, जज करते हैं, देन कोई भी सोल्यूशन पे हम आते हैं। तो ये होता है फर्स्ट नेचर। ये एक सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल प्रोसेस है। Anybody have doubt in this? Can ask. क्योंकि फिर अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है जैसे कि होटल्स में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, हाँ। तो उस केस में हम लोग सिस्टमैटिक वे में तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा कि जैसे अगर इमरजेंसी है, आप कोई सिनेरियो दीजिए जैसे इमरजेंसी का आप कह रहे हैं। इमरजेंसी है जैसे फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई है
या ऐसा कोई सिनेरियो तो वो अपने इमीडिएट सीनियर को वो कंप्लेन जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल उसने सीनियर से बात नहीं की, सीधा पुलिस इन्वॉल्व कर दिया, पुलिस अब होटल के सामने खड़ी है, तो उस केस में क्या करेगा? लाइक पहले पुलिस आने में बीच में एक टाइम भी होता है, टाइम फ्रेम भी होता है, तो उस टाइम फ्रेम के बीच में वो अपने इमीडिएट सीनियर नहीं, होटल वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, अच्छा होटल वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व कर दिया। ओके आई विल गिव यू आंसर इन सम टाइम। उसने गूगली फेंक दी। रशिदा ने पकड़ लिया, टांगे से खींचनी है। ओके गुड। ये मैं बताऊंगी सर थोड़ी देर में बताऊंगी। नहीं, I'll get back to you. I'll get back to you. हाँ next आ गया। So next nature is it is fair and objective. So fair and objective means that decision जो होते हैं वो made होते हैं without any kind of personal biases. कोई भी favoritism नहीं होता है इसमें, कोई भी लाइक फेवरेटिज्म या किसी को फेवर नहीं करता कोई भी अपना सीनियर जो होता है। इसमें क्या होता है मैनेजमेंट जो होती है वो एग्जामिन करती है ग्रीवेंस को और वो रिलाई करती है कंपनी के रूल्स पे, उनके एविडेंस पे, उनके फैक्ट्स पे और लेबर लॉज पे, उन पे वो रिलाई करती है, फिर वो कोई क्या कहते हैं कंप्लेंट को हैंडल करती है उस तरीके से। But how do we ensure that it is fair? फेयरनेस तो जो बंदा बैठा है उसके ऊपर होता है ना। हाँ सर, तो इसमें क्या होता है कि फेयरनेस ऐसे कह सकते हैं ना कि वो किसी भी लाइक अगर कोई कंप्लेन कर रहा है आपके खिलाफ ही कोई कंप्लेन कर रहा है कि सर ने ऐसे कर दिया मेरे सर, ठीक है ठीक है, तो क्या कहते हैं ना हम पहले चेक करेंगे, हम ऐसे एकदम रैंडम कंक्लूजन पे नहीं आ जाएंगे कि सर ने ये किया, हम पहले चेक करेंगे कि सर ने ऐसा क्या किया है जिसके ऊपर। लेकिन जो चेक करेगा वही हाँ। बात मैं कह रहा हूँ, जो चेक करेगा हाउ इट इज मे बी पॉसिबल कि वो मेरी तरफ बायस्ड हो या वो मेरा क्लोज हो, तो उसका वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। सब ट्राई करते हैं बेसिकली कि वो मोस्टली फेयर ही रहे, ऐसा तो कोई भी इतना भी ऑनेस्ट नहीं होता है, किसी न किसी का कोई भी फेवरेट होता है, लेकिन वो बहुत ट्राई करते हैं, वो पिछला रिकॉर्ड भी देखते हैं, सब एविडेंस देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, फिर वो उस बेसिस पे अपना रिजल्ट कंक्लूजन देते हैं। चेक करने वाला भी कौन है, बंदा ही है ना कोई। हाँ सर, लेकिन अब तक गलती तो सबसे होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना। फेयरनेस लाइज इन द सिस्टम नॉट इन द पर्सन बेसिकली। हाँ तो सर इसलिए तो हम कमेटी बनाते हैं ना। चलो ठीक है, वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, ओके कंटिन्यू। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम सारे एम्प्लॉयज़ की अब उनका पर्सपेक्टिव सुनते हैं, फिर उस पर्सपेक्टिव को हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, ताकि कोई भी तरीके का लाइक क्या कहते हैं उसे बायसनेस ना हो, ठीक है। सो फेयर एंड क्या कहते हैं फेयर एंड ऑब्जेक्टिव होने से क्या होता है कि एम्प्लॉय के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि उसको यकीन होता है कि कोई है हमारी हेल्प आउट करने के लिए, हम अपना लाइक क्या कहते हैं एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन की फीलिंग क्रिएट कर देते हैं कि वो मोटिवेट हो जाता है कि मेरी कंप्लेंट कोई सुन रहा है अच्छे से, उसको एड्रेस कर रहा है कंप्लेंट को, और इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप भी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज टाइम बाउंड इन नेचर। सो टाइम बाउंड कैसे होता है, बेसिकली जो भी ग्रीवेंस हैंडलिंग का प्रोसेस होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। ये नहीं होता कि लाइक अगर आपको एक कंप्लेंट को एड्रेस करके चल जाए तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे, 2 महीना 1 साल ले लेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए विद इन अ पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आपको उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना होता है। Next, it is confidential. Can anybody tell me why it is confidential, other than Shashi? It is confidential because it is for someone's like job. He or she is doing that job. It could be like the grievance might be false or maybe right. It is like right now the decision is not made, so maybe that's why it's confidential, so that no one else could judge them for that. Okay. Anybody एक else? टाइम पे डिपार्टमेंट कभी कभी एक इंसान को पॉइंट आउट भी करने लग जाता है, जैसे
ऐसे कोई किसी का क्लोज साइडलाइन करने लग जाता है उसको। हाँ, इसलिए that's why it's confidential. anybody else? आगे कॉन्फिडेंशियल क्यों है, मतलब ग्रीवेंस हैंडलिंग हम कॉन्फिडेंशियली क्यों करते हैं? किसी की बात किसी को ना पता चले, किसी सीक्रेट्स को मतलब कंपनी तक मतलब चले। क्यों? क्यों मतलब अगर आप अगर किसी की बात कोई और जान जाएगा दूसरी, तो फिर पॉइंट आउट करेगा, फिर वो आपस में शेयर करेगा, बात इससे फैल जाती है। या राइटली सेड बाय ऑल ऑफ यू। सो इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी से ये होता है कि हम किसी भी पर्सन की जो कंप्लेंट होती है उसको हम एक प्राइवेटली मतलब 1-on-1 कॉन्वर्जेशन करते हैं, उसकी सुनते हैं। वो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी तो क्या होता है, एम्प्लॉय का जो है ना, मतलब वो सच बोलने के लिए ज़्यादा इंकरेज होगा कि उसको पता रहेगा कि उसकी कंप्लेंट जो है वो बाहर नहीं जा रही, तो वो ज़्यादा सच बताएगा अपनी सिचुएशन के बारे में, अच्छे से वो हमें एक्सप्लेन कर पाएगा। नेक्स्ट आर द कॉजेस। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल कॉज। सो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कॉज वो होता है जब कभी भी किसी कंपनी का पॉलिसी स्ट्रक्चर या उनका एसओपीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तब ऐसा टाइप का कॉजेज अराइज होता है। ठीक है, लाइक अगर किसी कंपनी का अनफेयर या अनक्लियर कंपनी पॉलिसी है, लाइक एम्प्लॉय क्या होता है, उससे डिससेटिस्फाइड फील होता है कि रूल्स जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट है और वो किसी को फेवर कर रहे हैं, तो उससे वो डिससेटिस्फाइड फील होता है। तो और अगर स्टाफ और उसके सीनियर स्टाफ में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी वो ऑर्गेनाइजेशन कॉज के अंदर आता है। ठीक है, लाइक अगर कोई सीनियर है किसी भी एम्प्लॉय को बार बार पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है, उसको बिना बात के लिए साइडलाइन कर रहा है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कॉज के अंदर आता है। नेक्स्ट इज द वर्क एनवायरनमेंट कॉज। So now I want input from you guys. So what do you understand by work environment cause? Not from this side, I want from this side, from Devanshu to that side. Like what do you understand by the term work environment cause? Causes which are caused in work environment. Can you please elaborate a bit? So there can be scenarios while working with colleagues or maybe with my seniors. There can be consequences that I may not feel good with working. Like you with them. feel The you may feel behavior. unsafe or Yes. like that. It can be anything else. It can be unfair. Maybe I don't like behavior of my colleagues or my senior members. That can be work environment cause. Anybody else? Like poor conditions, workload, Hmm. safety issues. Like work environment, do you think कि work environment cause में ये भी आएगा कि अगर किसी के पास properly काम करने के लिए equipments नहीं है तो भी इसके अंदर आएगा क्या वो? What do you think? I want an answer guys. हाँ, वो आ सकता है ना, पुअर फैसिलिटीज आ सकता है। आप explain करेंगे आगे? एक्सप्लेन तो कुछ भी छोटा सा जो भी आप बोल रहे हैं। पुअर फैसिलिटीज में तो कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे नेसेसरी आइटम्स है, कुछ भी। Okay, anybody else? Okay. So, yeah, that's it. Next is the management and supervisory cause. Basically इसका simplest meaning ये है कि आपको कभी भी किसी senior स्टाफ से कोई भी तरीके का हार्म या कॉज हो, लाइक अगर कोई भी सीनियर आपसे लाइक अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, आपको हर चीज़ में लाइक वो अपने दूसरे एम्प्लॉय को फेवरेटिज्म दिखा रहा है, तो वो इस कॉज के अंदर आएगा। इसका एग्जांपल है किसी का कुछ, जैसे वर्क एनवायरनमेंट कॉज का एग्जांपल क्या है? सर वर्क एनवायरनमेंट कॉज का ये एग्जांपल हुआ, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, जब मैं हाउसकीपिंग में काम कर रही थी, अगर हमारे पास किसी भी लाइक लिनन को क्लीन करने के लिए एडिक्वेट हमारे पास केमिकल्स नहीं हो, तो वो वर्क एनवायरनमेंट कॉज के अंदर आ जाएगा कि हमारे पास एडिक्वेट मटेरियल नहीं है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, वो ये फील करेगा कि यार हम इतने बड़े होटल में हमारे पास सब चीज़ काम करने के लिए सामान ही नहीं है, तो ऐसा आएगा।
अच्छा फिर काम नहीं कर पाएगा वो, बैठेगा ना। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो सामान होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ही उसका स्टॉक आउट हो जाएगा, कभी कभार ऐसा होता दिस है। कुड बी अ ग्रीवेंस, Yes sir, it can be a grievance at some point of lack time. of supplies. So lack of supplies, lack of equipments can be a reason for a grievance. Like कि वो अगर कोई क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी से काम करके किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जा रहा है, उस प्रॉपर्टी में उसको अगर अच्छा फैसिलिटीज ये सब नहीं मिले तो वो ग्रीवेंस के अंदर आ सकता है, वो छोड़ने का उसका रीजन भी बन सकता है। Okay. बट जो एग्जांपल दिया उसमें अपने एग्जांपल में हाँ। बोला कि कोई इक्विपमेंट की हाँ। कमी है, तो हाउ दैट कैन बी इन वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की कमी है कि जिस कारण से एम्प्लॉय को फील हो रहा है, दैट कैन नॉट बी वर्क एनवायरनमेंट। सपोज मतलब कोई रेस्टरूम नहीं है अगर, या फिर वॉशरूम गंदा है, ये सब उसमें भी आएगा, वो फैसिलिटीज में तो आता है, और इसमें आएगा वो। वर्क एनवायरनमेंट कॉजेस में बेसिकली जब कोई इक्विपमेंट है जो हजार्डियस है, जो मे बी हेल्थ, किसी भी एम्प्लॉय का हेल्थ को हार्म कर सकता है, जैसे इसमें इन्होंने बोला ना कि हाउसकीपिंग की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ड्री में फॉर एग्जांपल कैंडर मशीन है या कोई टंबल ड्रायर है जो मे बी गैस रिलीज कर रहा हो, या ऐसा कोई गीजर है जिससे वो हो रहा है, जिससे एम्प्लॉय को हार्म हो सकता है, Like hazardous. तब एम्प्लॉय ग्रीवेंस के लिए अप्लाई करता है कि मेरे वर्क मतलब मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है। See, ये जो word है grievance, it is a derivation from grave. grave का मतलब होता है कि मतलब गंभीर स्थिति, ठीक है। प्रॉब्लम में इसमें प्रॉब्लम रिड्रेसल कमेटी नहीं है या इशू रिड्रेसल कमेटी नहीं है, ग्रीवेंस है। ग्रीवेंस का मतलब है कोई गंभीर समस्या। हाँ। तो गंभीर समस्या ये नहीं हो सकती कि स्टॉक की कमी है, इक्विपमेंट सर की कमी माइनर है। और मेजर भी तो हो सकता है ना, कि छोटा कंप्लेंट होगा तो इसलिए, कोई मेजर कंप्लेंट होगा वो भी तो हो सकता है ना सर। जैसे शिखा ने बताया ना कि हाँ। इफ इट इज मे बी Hazardous. किसी को हाँ चोट लग सकती है, किसी का कुछ इंडस्ट्रियल, आपने बोला ना खुद ही आपने बोला कि इंडस्ट्रियल से लिया गया है, तो इंडस्ट्री में सपोज करो मशीन्स होती हैं एंड आप देखते हो कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी कोई भी मशीन में कोई खराबी है, कोई दिक्कत है और उसको ठीक नहीं कराया गया, देन इट कुड लीड टू मे बी इंजरी, Yes. देन इट इज समथिंग ग्रीवेंस। होटल्स में या जहाँ पे आप देखोगे तो आप देखते हो कि जब भी आप मॉपिंग कर रहे हो तो यू ऑलवेज पुट वेट फ्लोर, Yes. it could lead to an accident Signage होता है। if you don't put signage over there, it could be hazardous again. Yes. Somebody that can trip. could be a grievance कि हमारे पास वही नहीं है, रखने के लिए वही नहीं है। उस सेंस में आप कह सकते हो कि हाँ lack of or unavailability Inadequate, of wet floor signages, in that scenario it could be possible, but that should be defined properly. Yes. केवल ये कह दे पाना कि मेरे पास जो है वो हार्पिक नहीं, इसलिए मैं वो मशीन को दिखा पा रहा हूँ, नहीं। that will not be really a grievance. एग्जांपल RC. तो yeah, whatever it is. What she's getting technical, huh? Okay, good. So grievance is not only problem or issue. It is beyond that. It is something which is of higher priority, you can say. Okay, good. So next is the economic causes. So economic causes are the financial issues. Like अगर किसी भी एम्प्लॉय का वेजेस से उसको इशू है, किसी को सैलरी रिलेटेड इशू है, किसी की सैलरी डिले हो गई, तो ये काइंड ऑफ इशू लाइक कॉज क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें लाइक अगर किसी को अनइक्वल इंसेंटिव या बोनसेस मिल रहे हैं, किसी को लैक ऑफ फाइनेंशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, लाइक आपने देखा ही होगा कि होटल्स में टाउन हॉल मीटिंग होता है, मानव नहीं रिलेट कर पाएगा उससे, लेकिन मैं समझा रही हूँ। लाइक हमारे जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे मैंने भी काम किया, तो वहाँ पे एक टाउन हॉल मीटिंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो बेस्ट एम्प्लॉय है और उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, उसको बाय गिविंग एनी काइंड ऑफ मेडल सर्टिफिकेट उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जहाँ काम करते थे तो वहाँ पे उनको एक कैश प्राइज भी मिलता था एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ को। तो अगर वो नहीं हो रहा है किसी भी होटल में तो उनको भी ये लगेगा कि उनके काम का अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ये सब होता है इसके। तो ये जो मीटिंग होती है बेसिकली कितने इंटरवल पे होती है? ये 1 मंथ में होती है, हर मंथ हर में। महीने में होती है। हाँ महीने। तो मतलब जरूरी होती है करनी या नहीं भी करा जा सकती है? नहीं, इसलिए जरूरी थे बिकॉज उसके अंदर हम क्या कहते हैं अपने लाइक अपना
वो देखते हैं कि हमारा बजट अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया, ये सब चेक करने के लिए हम ये हर महीने करते हैं। एप्रिसिएशन भी करते हैं, इसमें मतलब सब कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट अ मंथ। तो एक ग्रीवेंस है। सर देखिए ना, अगर किसी को उसके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो गंभीर समस्या है। सर कभी कभार कोई होता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और वो काम करता रहता है लेकिन उसको, ऐसा नहीं। सर मैंने तो इतना पढ़ा था उसमें यही लिखा था, कहाँ पढ़ा है? गूगल। चैट जीपीटी तो नहीं है। गूगल पे जो है देवांशु भाई ने अगर कुछ लिख दिया और आपने उसे पे मान लिया तो जरूरी नहीं कि वो पूरा सत्य हो। हाँ हाउ यू कैन वैलिडेट दैट? सर आई इज गेट गूगल ऑथेंटिक? बिकॉज़ ये इज नॉट गिवन दिस थिंग जो आप बातें कर रहे हो ना, these are basically not grievances. These are the causes for grievances. No, it is basically maybe ये हम बिल्कुल एचआर का फॉल्ट भी नहीं कह सकते। ये बोल रहे कि कोई उठ के भाई मेरे पास फाइनेंशियल इतना वो नहीं है, आई कैन नॉट गिव रिवॉर्ड्स। अब ये थोड़ी कह सकते हैं ग्रीवेंस आ गया उसमें। इट्स ग्रीवेंस, इट इज नॉट बेसिकली। चलिए आगे बढ़िए, फील्ड डिस्कस में भी लेटर। नेक्स्ट इज पर्सनल कॉल। सो पर्सनल कॉल्स कैसे हम ले सकते हैं, लाइक किसी का भी लाइक पर्सनल रिलेटेड इशू है तो वो उसके सर बता रहे सर, आप ऐसा मत देखो सर। जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाऊंगी फिर। चल वो दीवार की तरफ देखना तो पढ़ा। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सम ग्रीवेंसेस होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल एम्प्लॉय सर्कमस्टेंसेस से और इंटरपर्सनल इशू। सर इंटरपर्सनल इशू हमने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है। सो एनीबॉडी नो व्हाट इज इंटरपर्सनल इशू? किसी की शायद दूसरे डिपार्टमेंट से बन नहीं रही हो तो नहीं, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट। Interpersonal is like departmental issue, person to person. Person to person. It happens between one. Internet department. हाँ, person to person. That will come under inter department में आएगा। Interpersonal basically दो लोगों के बीच में एक इशू होता है। डिपार्टमेंट को कोई लेन देन नहीं, दो लोगों के बीच में एक इशू है तो वो होता है। सो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस या पर्सनल प्रॉब्लम से भी कॉज आ सकता है। किसी को लाइक उसका हेल्थ, उसकी फैमिली इशू है, उसका हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे क्या होता है कि उसका वर्किंग लाइक हैम्पर होता है, वर्किंग सिचुएशन हैम्पर होता है जिससे वो डिससैटिस्फाइड फील करता है। तो ये इसके अंदर आता है पर्सनल कॉज। सो नाउ आई हैव अ एक्टिविटी फॉर यू। कितने लोग हैं? So I have 5 scenarios. So I will be dividing it into pair of 2, and you have to answer like which cause is related to which scenario. Guys, please pay attention. ओके मैम। तो मैं आप लोग को एक एक सिनेरियो दूंगी, आपको 2 के ग्रुप में कर दूंगी, एक पेयर्स में, और आपको बताना है कि कौन सा कॉज में आएगा वो सिनेरियो, ठीक है? So first pair is Satyaryan, Chaitanya Devanshu, Manav and Asabri, Shreshi and Yogita. मैं क्या सर के साथ हो जाता हूँ। You can go with sir if it is your choice. Sir के साथ ही कर लीजिए। But he will represent me. Yeah. So first scenario is for you guys. Second, third, fourth and fifth. So I am giving you a time for 5 minutes. Then we will discuss. You can Okay. discuss among yourself. कौन सा कॉज है, कौन सा कॉज है? योगी, कॉजेज बताने हैं मेरे बैग में से दे दो, नहीं तो। कौन सा कॉज है इसमें बताना है, Causes? जो पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा है, कौन सा कॉज है? एक बार हाईलाइट कर दूँ। मैं बताती हूँ। एग्जॉस्टिव तो इन्वायरमेंट
पहला ऑर्गेनाइजेशन कॉज है, देन वर्क एनवायरनमेंट कॉज, थर्ड इज पर्सनल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी कॉज. You guys are ready? Yes. Okay, we'll start with Akil. क्वेश्चन नंबर 5 ही दिख रहा है, कोई बात नहीं है. संजय फील ये आता है. Sanjay feel uncomfortable as a colleague constantly making an appropriate comment. He feel humiliated and anxious. Your workplace sexual harassment misconduct होगा. Okay. और क्या आगे बढ़ो भाई. Thank you. Yogita and Shashi. तो हमारा फोर्थ वाला है, नेहा इज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गिवन ट्वाइस द वर्क ऑफ हर peers without additional support. She is exhausted and stressed. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉज हो सकता है, मतलब होगा. Right. So हमारा थर्ड वाला था, Amit works in a factory where safety equipment is not provided. He worries about accidents but feels ignored. So ये workplace cause के अंदर आया. Yeah, rightly said. हमारा सेकंड वाला है, Priya notices that her colleague who joined later got promoted due to personal favoritism by the supervisor. She feels demotivated. It's a personal cause. Can you think again? Like, It's a personal cause, like favoritism is mentioned here. don't you think it will be a management or supervisory cause? Do you think it will be a personal cause? No, the correct answer is management and supervisor cause, because क्या कहते हैं इसमें उसके supervisor जो है वो favoritism दिखा रहा है, मतलब उसका senior top management ये सब कर रहा है, तो उसके ये management and supervisor के अंदर आएगा. Next you guys. Ravi, a software developer, has not received his salary for the last 2 months. He feels frustrated because his bills and rent are pending. So this will come under the economic cause, because he has not received his salary for the last 2 months. Yeah, it is basically related to financial issue. Yeah, rightly said by all of you, except you guys. So now we'll move forward, and this is the last topic for today's presentation. So now we'll talk about the procedure of grievance handling. So it is the basic procedure. So पहले हम क्या करते हैं, किसी भी grievance को हम first and foremost step होता है to like listen to a grievance and identify it. What is a grievance is. Then afterwards we'll understand what kind of issue is, and the management इसमें क्या करता है, carefully listen करता है employee की complaint को, और वो फिर क्या कहते हैं उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं. नेक्स्ट बाद में हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, लाइक हम फैक्ट्स एविडेंस उनको कलेक्ट करके इसमें गैदर करते हैं. ठीक है.
उसके बाद हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, हम देखते हैं, हम पॉसिबल आउटकम्स ढूंढते हैं कि हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर ग्रीवियंस को हैंडल कर सकें। इसमें हम डिफरेंट सोल्यूशंस ढूंढते हैं। देन लास्टली हम इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप लेते हैं। हमने जितने भी सोल्यूशन देखे हैं उसको हम उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ टाइम बाद हम उसमें फॉलो अप भी लेते हैं कि ये ग्रीवियंस दोबारा तो नहीं आया। ठीक है, so now I'll come to conclusion. So I will be asking questions in this also. So I will be choosing one person, they will choose another, then ऐसा like 5 बार होगा, तो 5 questions हैं ताकि हम अच्छे से अपना टॉपिक को रिकैप कर सकें। So first I will ask देवांशु, आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद एक अनदर पर्सन को चूज करेंगे ताकि वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर करेगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक रिकैप ले रहे हैं, आपको ग्रीवेंस हैंडलिंग और एम्प्लॉय ग्रीवेंस हैंडलिंग से क्या समझ में आता है? इट इज लाइक ये एक प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय की से जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपने ग्रीवियंस डिपार्टमेंट से शेयर कर सकता है, ताकि विद इन वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और एक अच्छे पूरे फुल प्रोसेस के साथ उसको सॉल्व करे to improve his work, his or her working conditions. Basically registering your complaint, right? आप किसको चूज कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? So Manav, I want you to explain what are the nature of grievance handling, employee grievance. You can explain first to one. That is, I'll tell you. That is systematic and formal process and fair and objective. सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल प्रोसेस ये कि किसी भी कंप्लेंट को मतलब ग्रीवेंस को जो हम बताते हैं। Guys, please pay attention. Next chance will be yours. Can be yours. Yeah. So सिस्टमैटिक प्रोसेस से मतलब है कि उसका जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए कि पहले आप कंप्लेंट को बताओगे कोई भी जो आपको इशू है, फिर उसका एग्जामिनेशन होगा कि मतलब आपको बेसिकली किस चीज से रिलेटेड कंप्लेंट और क्यों है, और फिर उसके बाद उससे रिव्यू करा जाएगा और लास्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड। तो ये तो फर्स्ट आंसर है। फेयर एंड ऑब्जेक्टिव? फेयर एंड उसमें कि जो भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा रहा है बेसिकली वो आई गेस सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, मतलब जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं उनमें सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा जा सके ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और वो भी विद इन स्पेसिफिक टाइम, मतलब बहुत ज्यादा लेट नहीं, एक प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर। नेक्स्ट पर्सन अच्छा, Asalti, you can tell the other two nature, that is time bound and confidentiality. Time bound is like the grievance handling should be done in a time period, like within a week or for more than 15 days. It would be like it should not take 1 hour, 1 day. Sorry, 1 month or like for 1 year. That should it be not like- exceed its time. Okay. And confidentiality? Confidentiality is like the grievance should be confidential because it should not be told to everyone, so that they should be pinpointed till the time the Grievance is grievance is completely not solved. Yeah. Next person for you. Sure. Okay. So Shreya, can you tell me what are the organization cause and work environment cause? So ऑर्गेनाइजेशन कॉज ऑफ ग्रीवेंस तब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वर्क एथिक इशू है या उनकी कोई रूल्स है या पॉलिसीज है जो किसी को नहीं पसंद आ रही है, किसी को हैम्पर कर रहे हैं, जो कि बायस हो सकता है मेरी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या जेंडर को लेके, तो ये ग्रीवेंस का कॉज हो सकता है। एंड दूसरा इज एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंडस्ट्रीज में तब होता है जब कोई भी इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है या कोई हजार्डियस कॉज हो सकता है किसी भी चीज़ की वजह से, तो उस टाइम पे जो वर्कर्स होते हैं वो ग्रीवेंस मतलब प्ले कर सकते हैं। Okay. Next person for you, Shreya. That's it. So that's it. You can tell me what is management and supervisory cause?
तो मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर कॉस्ट में लाइक इसमें अगर एम्प्लॉय को अनफेयर ट्रीटमेंट मिले एंड लाइक प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड ना हो एंड मैनेजमेंट से प्रॉपर लैक ऑफ कम्युनिकेशन में Next. Aryan. Okay. Aryan, you can tell me what is economic and personal cost? So economic cost can be a cost which is cost to any employee on basis of its maybe its salary or structure which is he has been delayed in salaries. Okay. Next person for you. There are two left, Chaitanya and Akib. Akib. So Akib, your question is, what is the procedure of grievance handling? You have to tell me starting 2 steps of procedure handling, and next 3 steps will tell by Chaitanya. प्रोसीजर तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. Okay, Yogita, you can tell. First is to identify the grievance, Yes. then to understand the grievance, understand the issue. Yeah. Now Chaitanya, last 3 steps you can tell, and that will be the conclusion for the day. So we gather and then we analyze and then we come to the conclusion. You mean to say implement and we do follow. Okay. So that's it for today. So these are the references. Thank you. Can we go back to the reference?